शुरुआती हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो Lied about you, so I will listen when we met. I sleep about. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hello everyone, please switch on your videos. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Raise your vibrations. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank
Thank you, 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 thank you. Come on, everyone, switch on your videos. Let's see your beautiful smiles. Raise your vibrations. Yes, everyone. Good morning, everyone. Good morning and welcome to your own beautiful journey of the magic book. Thank you for joining. Thank you for practicing. Just a minute, I'll play the disclaimer. Just a minute. To whomsoever it may concern. The context of each and every Shukrana gratitude education sessions, programs, retreats, get-togethers, offline, online workshops is to empower you to make your desired dreams come true and enabling you to live a life that you really want to live. Please note, any reader, volunteer or core member of Shukrana gratitude education is only and only a consistent practitioner of gratitude, focused gratitude, law of attraction, manifestation practices. We are not any doctor, healer, therapist, professional coaches, or any certified counselors. We are not. Each one of us is only gratitude practitioner, and most of our philosophy is based on practices of the Magic Book, written by Rhonda Byrne, and other related books of the Secret series, some scriptures, or maybe some other authors' books, etc. Please note, sometimes a book reader or book detailing volunteer may use their personal life experiences, personal examples, personalized point of views while reading or detailing the chapters of the book. Please note, it is only and only their personal point of view and may or may not be related to the intention and context of the Magic Book. We recommend you to listen, understand, and practice philosophy and assignments suggested by the Magic Book only by Rhonda Byrne. You can choose to practice Shukrana gratitude education philosophy if you really personally agree to it and like to. Heartiest gratitude for your trust and support from all the team members of Shukrana gratitude education. One of the biggest mistakes mums are making. Thank you everyone. Thank you everyone for joining. Welcome to the beautiful magic book session. सबने कल की ड्रीम्स लिख लिए सबने लिखे जिसने लिखे हैं सब चैट बॉक्स में लिखेंगे यस ड्रीम्स. वाओ, हर एरिया में लिख लिए, जो मन में था सब खाली कर दिया. कोई वो नहीं है इस बार की ये टेंस वो टेंस, बिल्कुल जैसे मन में आए. आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू गो टू दिस सिटी और दिस कंट्री विजिट, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जिस कॉलेज में जाना है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जितने मार्क्स चाहिए, बच्चे के भी मार्क्स चाहिए, तो लिख के कुछ नहीं होता, लिख दो. उसके बाद जब हम लास्ट में आएंगे ना दूसरों के लिए, तो एनर्जी हमें तभी मिलेगी. लेकिन लिख दो, खाली कर दो अपने माइंड को. जिसने लिख लिए हैं कल, वेरी गुड, वेल डन, थैंक यू. जिसने नहीं किए हैं प्लीज़ आज फिनिश कर लेना ये काम, क्योंकि ड्रीम्स लिखोगे तभी आगे जो पावर मिलने वाली है, जो भी हम आज डे 1 से स्टार्ट करेंगे, जो भी हम कमाइयाँ इकट्ठी करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड की, वो आज से करने वाले हैं. तो उन सारी कमाइयों को कहाँ लगाना है, वो इसलिए वो बस कल की असाइनमेंट थी. बाकी हम डे 13 पे आज के बाद हम सीधा डे 13 पे ड्रीम्स की बात करेंगे. ठीक है, तो अगले 12 दिन हम सिर्फ कमाइयाँ करेंगे ग्रैटिट्यूड की. तो let's start today's chapter with smiles on your face, with with full of gratitude in your heart for the book. Okay, because
रोंडा बर्न ने जो ये बुक बनाई है और मैम ने हमें जो सिखाया है, it's invaluable. So please be grateful for this knowledge that is being shared with you. Thank you. Day 1. Count your blessings. Audible? Just yeah, thank you. So day 1, count your blessings. ठीक है? तो क्या होती हैं blessings? काउंट क्या करना है उसको? तो ब्लेसिंग्स वो नियामतें जो हमें हायर पावर ने, एनर्जी ने, भगवान जी ने दे रखी हैं, भर भर के दे रखी हैं, फ्री में दे रखी हैं और हमें पता ही नहीं है, हमने कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया. नियामतें. काउंट योर ब्लेसिंग्स इज आवर फर्स्ट चैप्टर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. When I started counting my blessings, my whole life turned around. These are the words by Willie Nelson, singer and songwriter. ना तो उन्होंने क्या बोला कि व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स माय होल लाइफ टर्न अराउंड. ये एक बहुत फेमस सिंगर और सॉन्ग राइटर है विली नेल्सन, जिन्होंने ये बात लिखी है. ठीक है, उनकी लाइफ कोई बहुत वो मज़ेदार लाइफ नहीं थी. जब वो एक टीनेजर थे, बीच बीच में वो ड्रग्स और ये सब में भी पड़ गए थे, एंड ही वांटेड टू बी अ सिंगर. बट व्हेन समवन टोल्ड हिम अबाउट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, जब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी शुरू की तो उनकी पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो गई. ये विली नेल्सन भी कह सकते हैं, ये हम सारे वॉलंटियर्स भी कह सकते हैं, जिन्होंने मैजिक बुक प्रैक्टिस करी है वो भी ये बात को बोल सकते हैं कि जब हमने अपना पूरा ध्यान उन चीज़ों पे दिया जो हमारे पास हैं, जो हमें भगवान जी ने दे रखी हैं, तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई. पूरी ज़िंदगी बदल गई हमारी, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उन चीज़ों पे चला गया कि वाओ वाओ प्रभु वाओ, है ना. तो यस, लेट्स रीड फर्दर. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you're grateful for, that's exactly what you're doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. ना तो आपने कभी सुना होगा बड़े लोगों को बोलते हुए कि शुभ शुभ बोला करो, अच्छा बोला करो, है ना. ऐसे सब मतलब सुनते हुए सुना होगा ना, बोलते हुए कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, अच्छी अच्छी चीजें सोचा कर, है ना. बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्यों करना है वो. हमने कहा हाँ ठीक है ऐसे ही कह रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वो क्यों कह रहे थे. उनके पास भी उस टाइम शायद लॉजिक नहीं था. बट व्हेन यू थिंक अबाउट द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, मतलब जब आप अपनी चीज पर, हमें ये नहीं बताया कि हमें थैंक यू बोलना है उन चीजों के लिए. हमें बोला है शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल, वो बोलो, अच्छा बोलो. लेकिन हमें ये नहीं बताया कि अच्छा बोलने में थैंक यू बोलना था, है ना. तो व्हेन यू थिंक अबाउट द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, यानी किन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हो कि जो आपको मिली गई हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, आप डूइंग मतलब ये भी एक डूइंग डोमेन का काम है. हम बोलते हैं ना कि कर्मा करो. दिस इज योर कर्मा विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, विच इज द बेस्ट कर्मा दैट यू कैन डू इज काउंट योर ब्लेसिंग्स. राइट डाउन. अभी बताएगी बुक कैसे करना है. बट यू मे नॉट हैव रियलाइज्ड कि काउंट करना ब्लेसिंग्स कितनी मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस है दैट यू कैन एवर डू. मोस्ट पावरफुल, मतलब ये काउंट योर ब्लेसिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं. एंड इट कैन, वो बोल रही है मैजिकली टर्न योर होल लाइफ. यस इट कैन. होल लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगी आपकी सिर्फ इस प्रैक्टिस से. और जो कल की प्रैक्टिस होएगी डे 2 की, इन दोनों प्रैक्टिसेस को मिला के आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी. पूरी जिंदगी. अभी देखते हैं कैसे करना है और क्या है ये. When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you're grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you're grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you're grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear.
है ना। तो वो बोल रही है कि इफ यू आर ग्रेटफुल, अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए जब ग्रेटफुल होना स्टार्ट करोगे ना, हमने हमने क्या पढ़ा, जो इंट्रोडक्शन पढ़ी 3 दिन, उसमें यही तो बताया था ना कि जब आप किसी चीज के लिए, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, whosoever इज ग्रेटफुल इज गिवन मोर, है ना। तो आज से हम उस फॉर्मूला को जो हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, उसको हम अप्लाई करने वाले हैं आज से। तो वो क्या बोल रही है, जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, यानी इंस्टेंटली इंक्रीज होने लग जाएंगी वो। हमें किसी ने, उसे एग्जाम्पल, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया आपको और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो गए, वाओ भगवान जी, आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। आप चाय के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो चाय पीते हुए, तो चाय इधर उधर जहां जाओगे आपको फ्रेंड्स आपको चाय पिला रहे होंगे, है ना। आप किस चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए, जिस जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल होगे, वो आपकी लाइफ में बढ़ने लग जाएगी। बात हुई छोटी चीजों की। फिर उसके बाद आती है कि वो बोल रहे हैं कि अगर आपको मनी चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप मनी के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे तो मनी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल होने लग जाओगे, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब है या नहीं है, लेकिन अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो गए, तो हो सकता है वो आपकी प्रेजेंट जॉब में ही सिचुएशंस चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगी, एंड अल्टीमेटली आप अपनी ड्रीम जॉब भी पालोगे। दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑल्सो अप्लाइड इन माई लाइफ लाइक 4 years ago। जब मैं बिल्कुल भी अपनी जॉब से, इट वॉज ओके ओके, आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, आई वॉज कंप्लेनिंग ऑल्सो, बट देन वेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस नॉलेज, मैंने अपनी ही जॉब में उन चीज़ों का शुक्राना करना स्टार्ट किया जो मुझे पसंद थी। जैसे मुझे लैपटॉप मिला हुआ है, जैसे मुझे चाय मिल जाती है, जैसे मुझे डेस्क मिला हुआ है, जो भी चीज़ें मुझे जॉब में थी, मुझे मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी, उसका थैंक यू करना स्टार्ट किया। तो मुझे अपनी ही जॉब में अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हो गई, और कुछ महीनों में तो मेरे को ड्रीम जॉब भी मिल गई। दिस इज सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर ऑन दिस। थैंक यू। आगे पढ़ते हैं। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. हाँ, तो जब हम काउंट नहीं कर रहे होते अपनी ब्लेसिंग्स, हम इंटेंशनली इस बात पे एनर्जी नहीं दे रहे होते कि मेरे पास क्या अच्छा है भगवान जी, मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, तो हमारा माइंड डिफॉल्ट मोड में अनइंटेंशनली नेगेटिव थिंग्स काउंट करनी स्टार्ट कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता सबके साथ? मतलब काउंट योर ब्लेसिंग जिसको कभी नहीं पता था, या फिर जो बिल्कुल नए लोग हैं, वो अपनी वो सोचे कि कितना ज़्यादा हम कंप्लेन करते हैं, कितना ज़्यादा हम फालतू की बातों में ध्यान दे रहे होते हैं। कभी हम कंप्लेन कर रहे होते हैं वेदर की, अरे बारिश क्यों हो गई, बारिश क्यों हो गई, अरे बारिश हो गई और अब तो ट्रैफिक की कंप्लेन कर रहे होते हैं, पुलिस वालों की कंप्लेन कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स की कंप्लेन कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की कंप्लेन कर रहे होते हैं, मनी की कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं, मेरी तो सैलरी कम है, अरे ये तो कितनी महंगी चीज़ है। हमारा पूरा ध्यान इन्हीं चीज़ों पे ही रहता है, और कुछ नहीं होता। तो फ़ोन करते ही अपनी हेल्थ के लिए कंप्लेन कर रहे होते हैं, अरे आज तो मुझे इतना दर्द है, ये है, मैं तो चल भी नहीं पा रही, मैं तो नीज में दर्द रहता है, मैं तो बड़ी ये हो गई, वो होता है कि नहीं होता? क्योंकि हमें बताया ही नहीं किसी ने कि हमको ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, हमको सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो हमें मिली हुई हैं। बहुत अमेजिंग चीज़ें मिली हुई हैं। तो जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करते, तो हम अनइंटेंशनली नेगेटिव थिंग्स काउंट करते हैं। ये आगे बता रहे हैं क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम नेगेटिव काउंट कर रहे होते हैं। When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. है ना। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब हम नेगेटिव चीजों को भी अगर काउंट करेंगे तो वो भी बढ़ेंगी, है ना। हम, आपने कभी खुद भी नोट किया होगा, आप जितना ज्यादा ट्रैफिक की कंप्लेन करते हो उतना आपको ट्रैफिक मिलता है रोड पे, है ना। हम जितना बोलते रहेंगे अरे यहाँ पहुंचने में तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, लगेंगे ही ना, आपने बोल दिया।
आप जो आपके वर्ड्स में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है, आप जो बोलते हो ना वैसा ही आपकी जिंदगी बनती जाती है। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। ओके, सो ये सब चीजें वो साइंस भी बता रही है, और ये जो बुक है हमने पूरा अच्छे से समझ लिया था इंट्रोडक्शन में। इतना ज्यादा है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये सच है, क्योंकि यू हैव टू बिलीव इट कि जो आप बोल रहे हो वही आपकी लाइफ में हो रहा होता है। तो वो बोल रही है ना रोंडा मन खुद बोल रही है कि आई हैव ट्राइड बोथ, काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स एंड काउंटिंग नेगेटिव थिंग्स। उसने दोनों ट्राई करके देख लिया, एंड आई कैन अश्योर यू कि काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स काउंट करना, अपनी नियामतें गिनना इज द ओनली वे टू हैव अबंडेंस इन लाइफ। अपनी लाइफ में समृद्धि लाने के लिए यही एकमात्र तरीका है कि आप अपनी नियामतें गिने। ठीक है, That counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. हाँ उसने ये भी बोला था कि एवरी नेगेटिव थिंग जब हम काउंट करते हैं तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को भी नेगेट करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। जितना आप कंप्लेन करोगे, आपने जो भी पॉजिटिव बोला है वो सब कट होता है। ठीक है, तो वो बोल रही है बेटर टू लूज काउंट वाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स। मतलब हम बोलते हैं ना, अच्छा मैंने तो 10 गिन ली, चलो हो गया, चलो। वो बोल रही है कि जब आप ब्लेसिंग्स काउंट करो भूल जाओ कितनी करी है, वाओ वाओ करते जाओ, than to lose your blessings to counting your troubles। क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, ट्रबल्स को काउंट कर करके नेगेट करते जा रहे हो, कैंसिल आउट करते जा रहे हो अपनी ब्लेसिंग्स को। जो आपको मिलने भी वाली थी वो भी कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि हम बोले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कंप्लेंट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ध्यान रखें कि अब से हम कंप्लेन नहीं करें कुछ भी, क्योंकि हम उसी को बढ़ा रहे हैं, बार बार बढ़ा रहे हैं, है ना। तो दीज आर द वर्ड्स बाय These are the words by Maltby D. Babcock, writer and clergyman. First thing in the morning, or as early in the day as you can, count your blessings. You can तो वो एम्फेसाइज कर रही है कि पहली चीज उठते ही, एज अर्ली इन द डे एज यू कैन, जब आपकी आंखें खुलती हैं, जैसे ही आपकी आंखें खुली और आप अभी नींद वाली स्टेट में ही हो, आपको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। ठीक है, तो ये कैसे करनी है अभी बताती हूँ, और क्यों सुबह सुबह करनी है अभी विल लेट यू नो। write out your list by hand, type it in a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you're grateful for. ठीक है, तो सबसे पहले उठते ही आपको एक अपने साथ साथ नोटबुक रखनी है, बड़ी सी A4 नोटबुक आज से आपके पास होगी। A4 क्यों? क्योंकि आप जब लिखोगे तो आपको ये नहीं सोचना अरे अरे पेज भर गया, चलो नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, कोई ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए। अबंडेंस का थॉट। बड़ी सी बुक होगी, आपके पास पेन होगा, वो आपके बिल्कुल साइड टेबल पे जहाँ पे भी आप सोते हो बिल्कुल उसके साथ रहेगी। और उठते ही जब आप उनिंदा स्टेट में हो, जब आपको हल्की हल्की अभी नींद में ही हो, आप अपना लैंप ऑन करोगे और आप स्टार्ट करोगे ग्रैटिट्यूड लिखना। ठीक है, क्यों करना है ऐसा? क्योंकि रात में जब आप सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है। ठीक है, देयर आर टू माइंड, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे आप अपने सारे काम सुबह उठने के बाद, जागने के बाद करते हो। जैसे कि आपको प्लानिंग करनी है, ऑफिस का काम करना है, कॉन्शियसली स्टेयर्स पे जाना है, ड्राइव करना है, ये सब आपका कॉन्शियस माइंड करवा रहा है। सब कॉन्शियस माइंड जो है वो बड़ी बड़ी चीजें करा रहा है, जैसे आपके ड्रीम्स पूरे करना। तो सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो सो जाता है, वो रात में जग जाता है। जब आप सो जाते हो, आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तो सब कॉन्शियस माइंड इज अवेक, एंड एट दैट टाइम सबकॉन्शियस माइंड इज डूइंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो वही कर रहा है। तो उसको हमें करेक्ट फीडिंग देनी है, करेक्ट चीज बतानी है कि मेरा माइंडसेट ये है, मैं खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो आप जब उसको सुबह सुबह, जब वो सोने वाला है, मतलब अभी जगा हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं सोया, और कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से उठा नहीं है,
तो ये जो ओवरलैप का टाइम होता है, इस टाइम पे जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, जब आप ये बताते हो कि वाह, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ, कितना अच्छा है, मैं कितनी अच्छी मेरी बॉडी चल रही है, जैसे जैसे आप उसे बताते जाओगे उसको लगेगा वाह ये तो खुश है, इसको और देना है, इसको और देना है। तो ये साइंटिफिक है कि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो ये करना है। अब लोग बोलेंगे कि हम बहुत सुबह नहीं उठ सकते, ये जब भी आप उठो, एनी टाइम यू आर वेकिंग अप, एज अर्ली इन द डे एज यू कैन, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, अभी देखते हैं कि कैसे करना है। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. है ना, तो वो बोल रही है कि जब आइंस्टाइन थैंक्स बोलते थे, हमने कल कल भी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था आइंस्टाइन के बारे में, कि वो उन्होंने सारी डिस्कवरीज करी क्योंकि वो ग्रेटफुल थे। तो जब वो थैंक यू बोलते थे तो रीजन बोलते थे वाई आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, आप जब जब रीजन दोगे कि वाई आई एम ग्रेटफुल, उतना ही आपको ज्यादा फीलिंग आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी आईज के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे आईज देने के लिए। अब मैंने ये लाइन बोली, और एक लाइन मैंने बोली कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, आई कैन सी द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स ऑफ द अर्थ। है ना, मैं ट्रीज देख सकती हूँ, मैं फ्लावर्स देख सकती हूँ, मैं अपने बच्चों की स्माइल देख सकती हूँ, मैं सबके प्यारे प्यारे चेहरे देख सकती हूँ, मैं रीड कर सकती हूँ। तो मैं जब रीजन देने लगी अपनी आईज के लिए ग्रेटफुल होने के लिए, तो मुझे ज्यादा फीलिंग आई। राइट, तो वो बोल रहे हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड लिखोगे तो आप रीजन दोगे व्हाई यू आर ग्रेटफुल। रिमेंबर दैट द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड हैपेंस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर फीलिंग। जितना आप ग्रैटिट्यूड को फील करोगे उतना ही वो मैजिक काम करेगा। वो मैजिक जो इनविजिबल रेल में होने वाला है, वो मैजिक जो आपको सपनों में पहुंचाने वाला है, वो सब कुछ आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग कैच होती है। जिसने सीक्रेट मूवी देखी है उन्होंने उसमें क्लियरली उन्होंने बताया है कि आपको पता तो नहीं चलेगा आप पॉजिटिव सोच रहे हो, थॉट्स को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन फीलिंग को आप पकड़ सकते हो कि आप अच्छा फील कर रहे हो या आप बुरा फील कर रहे हो। अगर आप बहुत, ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी टॉप गुड फीलिंग, मतलब अभी हम बाद में आपको बताएंगे फीलिंग चार्ट के बारे में, लेकिन ग्रेटफुलनेस जो ग्रैटिट्यूड है वो टॉप की फीलिंग होती है। तो वो आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगी, लेकिन उस फीलिंग तक पहुंचने के लिए आप जब ग्रैटिट्यूड लिखोगे तो आपको रीजन लिखना है। ठीक है, रीजन से ही आप उस फीलिंग को फील कर पाओगे। सो यस, सो हाउ आर वी राइटिंग, अभी वो पैटर्न बता रही है बुक कैसे लिखना है। So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Here are some ideas for writing your list. I'm truly blessed to have what? Because why? तरीके बता रही है कि कैसे आप लिख सकते हो, मतलब पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस। तो आप देख लो आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगता है, आप ट्राई कर सकते हो। ये वाले भी हिंदी में इसको कन्वर्ट करके भी अभी बताऊंगी मैं कैसे करना है, लेकिन इनमें से जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको पसंद आ रहा है, कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई आईज बिकॉज आई कैन सी माई द ब्यूटिफुल फेस ऑफ माई सन। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। या फिर आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई जॉब बिकॉज आई कैन अर्न मनी एंड आई कैन फीड माई फैमिली। राइट, तो इस तरीके से जो भी आपको पसंद आ रहा है, इसमें से जो आपको दिल को पसंद आ रहा है, उनमें से कोई भी एक सेंटेंस आप ले सकते हो। I am so happy and grateful for what? Because why? I'm truly grateful for what? Because why? ना, इसमें ये हो गया मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत दिल से सचमुच शुक्रगुजार हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल मतलब मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं सचमुच धन्यवाद देती हूँ इसके लिए, क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ इसके लिए, क्योंकि ये रीजन। तो इस तरीके से आप हिंदी में भी कर सकते हो। With all my heart, thank you for what? Because why? After you have finished making your list of 10 blessings, go back
and read each one either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. ठीक है, ये स्टेप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने नोटबुक उठाई, हमने इनमें से कोई भी एक पैटर्न चुना जो भी हमें पसंद आया, और मैंने लिखना स्टार्ट किया सुबह। मैंने लिखा, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई लेग्स बिकॉज आई कैन वॉक। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई house because it gives me all the safety and I'm so safe here. I'm truly grateful for the food that I ate yesterday because it was very yummy. तो इस तरीके से आपने 10 ब्लेसिंग्स लिख ली। अब आपने 10 पॉइंट्स लिख लिए। अब आपको वापस जाना है उन 10 पॉइंट्स पे, हर एक पॉइंट को रीड करना है और बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फिर फील द ग्रैटिट्यूड फॉर दैट ब्लेसिंग एज मच एज यू पॉसिबली कैन। आप जितना उसको फील कर सको उतना, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम ना ज़्यादा लिखते हैं, तो हमें तब भी लिखने की, तब भी रीड करने की ज़रूरत है क्या? हाँ, आप पहले बुक को फॉलो करोगे। बुक बोल रही है 10 ब्लेसिंग्स, तो आप 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे, उसको रीड करोगे 3 बार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर ब्लेसिंग के बाद बोलोगे। उसके बाद आपको जितने लिखने हैं आप लिख लो, ठीक है। आपको उसके बाद 20 लिखने हैं, 25 लिखने हैं, 50 लिखने हैं, जो आपका मन करे कर लो। लेकिन बुक ये कह रही है कि आपको 10 ब्लेसिंग लिखनी है, और 10 की 10 ब्लेसिंग्स को आपको रीड करके अलाउड पढ़ना है या माइंड में पढ़ना है। कई बार अलाउड पढ़ने से ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं। कई बार जितना आप बोलोगे ना और आपके कान उसी चीज़ को सुनेंगे, तो आप दिल तक आपकी आवाज़ पहुंचती है। तो प्लीज़ प्लीज़ डोंट मिस दिस स्टेप। जो जो बहुत पहले से भी मैजिक बुक कर रहे हैं वो भी इस स्टेप को बार बार मिस कर देते हैं। तो प्लीज़ डू इट अगैन एंड अगैन, और इसको पहले कर लो, उसके बाद आप जो मर्जी करो। उसके बाद आपको 40 लिखने हैं, 50 लिखने हैं, आप इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ओके, नाउ तो आपको बेसिकली फील करना है ना, इसलिए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड बोलते हो, करते हो, लिख रहे हो, तो आप किसी एक हायर पावर को चूज कर सकते हो। जैसे किसी को वाहिगुरु जी में है, किसी को माता रानी में है, किसी को शिव जी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, किसी को जिनसे भी, मतलब रिलीजन की बात नहीं है, किसी से भी हायर पावर है। यूनिवर्स बोल सकते हो, गॉड बोल सकते हो, सन को कर सकते हो आप अपना ग्रैटिट्यूड, है ना। तो जिसको भी, अगर आप एक एनर्जी को पकड़ लोगे और उनकी तरफ बोल के बोलोगे कि थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया रहने के लिए, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से इसमें एंजॉय कर पा रही हूँ। तो एग्जाम्पल ये है तो जब आप उनकी तरफ डायरेक्ट करते हो, मतलब अपनी एनर्जी को, अपने थैंक यू को, तो आपकी फीलिंग बढ़ जाती है। इस चैप्टर में अभी आपको रॉन्डामन हर तरीके से बताएगी कि अपनी फीलिंग कैसे बढ़ानी है बेसिकली। तो लोग बोलते हैं हमें फीलिंग नहीं आती, हम लिख तो रहे हैं, हमें फीलिंग नहीं आती। फीलिंग नहीं आती, आप खुद सोचो, जब आप लिखोगे, बोलोगे और भगवान जी को सचमुच दिल से बोलोगे ना, आप इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो। आप इस सेशन में हो, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप पे जिससे आपने ज्वाइन इन किया हुआ है, आपके पास लेग्स हैं, आपके पास कान है, आप सुन सकते हो, आपकी आवाज़ चल रही है, आपकी आईज आप देख सकते हो, आपको बचपन से लेके आज तक मतलब पढ़ाई करी है आपने, आप तभी तो रीड कर पा रहे हो, है ना। आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, खाना है खाने के लिए, घर है, एक छत है रहने के लिए। तो इतनी सारी चीजें हैं। आप अगर सोचो, जब भी आपको फीलिंग ना आए ना, तो आप जब उस नियामत के बारे में सोच रहे हो ना, तो सोचो अगर ये नहीं होती तो क्या होता। जैसे अगर आप अपनी आईज के लिए थैंक यू कर रहे हो, तो आप 1 मिनट के लिए सोचो मेरे को फीलिंग नहीं आ रही, आईज ही तो है। बट सोचो 2-3 मिनट के लिए भी अपनी आईज को ब्लाइंड फोल्ड करके सोचो कि नहीं होती तो क्या होता,
है ना? तो तब आपको अपने आप फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भगवान जी क्या नियामत दी आपने मुझे, मेरी लेग्स हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं आराम से चल पाती हूँ, स्टेयर्स ड्राइव कर पाती हूँ, जो मन करता है कर सकती हूँ, है ना? तो इस तरीके से अपनी फीलिंग्स को बढ़ाने के तरीके हैं ये, कि आप एक तरफ डायरेक्ट कर दो एनर्जी को, अपनी बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो, अपने हार्ट पे हाथ रख के बोल लो, जैसे भी आपको फीलिंग आती है आपको ये 10 ब्लेसिंग्स पूरी फीलिंग्स के साथ करनी है। Is the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude towards. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. The practice of counting your blessings is so simple and is so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. वो ये कह रही है कि काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इतनी पावरफुल और इतनी सिंपल प्रैक्टिस है आपकी लाइफ को बदलने के लिए कि आज से आपको अगले 27 दिन तक हर रोज अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है सुबह। ठीक है? तो वो ये बोल रही है कि आपको लगेगा, आप सोचोगे अरे रोज लिखनी है 10, हो अब मैं कहाँ से लाऊं 10 ब्लेसिंग रोज? तो वो बता रही है जब आप लिखने स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ लोग बोलते हैं हम रिपीट कर सकते हैं क्या? तो आप जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको रोज 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 अपने माइंड को जब आप सोचोगे तो हर एरिया में आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी लिखने के लिए। तो लेट्स सी हाउ, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं अभी बुक में, लेट्स रीड। But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and you're continuing to receive so much each and every day. There's really so much to give thanks for. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water. हाँ, तो वो बोल रही है कि जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो समझ में आएगा कि आपको कितना मिला है आज तक, और कितना हर रोज मिलते ही जा रहा है, मिलते ही जा रहा है, एंड यू हैव सो मच टू गिव थैंक्स फॉर, सो मच। सो यू कुड, सो एग्जाम्पल्स आप ध्यान से देखेंगे सब लोग क्या क्या एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे। यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर योर होम, अपने घर के लिए, घर के ही 100 शुक्राने हो जाएंगे। आप बोलते हो ना कि नहीं समझ आ रहा रीजंस, है ना? मैं अपनी किचन के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मेरी किचन में बहुत सारे ग्रोसरी है, थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी मेरी गैस स्टोव का, जिससे मैं इतने अच्छे से खाना बना पाती हूँ, थैंक यू भगवान जी। मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं बहुत मस्ती कर पाती हूँ, थैंक यू भगवान जी। क्योंकि क्योंकि हर हर सेंटेंस में आपको क्योंकि लगाना है। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना अच्छा काम देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने वर्क को। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना अच्छा काम देने के लिए, क्योंकि मुझे उससे सैलरी मिलती है। इस तरीके से जब भी आप सोचोगे सारे सारे पॉइंट्स, आप बुक को अपने साथ रखना, और आप भी अब जैसे रीडिंग हो रही है तो आप भी इसको देखो और साथ साथ रीड करो और सोचो सचमुच यार इतना कुछ है थैंकफुल होने के लिए। that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any one of them, you wouldn't be alive. सन का थैंक यू कर सकते हो, जो रोज सुबह अपने टाइम से आ जाते हैं, आप खुद की लाइफ में रोशनी भरते हैं सुबह सुबह आके, इतना प्यारा दिन दिखाते हैं, उनकी वजह से ही हम यहाँ सरवाइव कर पा रहे हैं प्लैनेट अर्थ पे। थैंक यू सन का। वाटर का, जो आप पीते हो, वाटर जो आपको हमेशा स्वच्छ रखता है, ताज़ा रखता है। खाना जो आप खाते हो, हवा जिससे आप सांस लेते हो, जिसकी वजह से आप जिंदा हो, उस हवा का थैंक यू। द एयर दैट यू ब्रीथ, विदाउट एनी ऑफ देम, फूड के बिना, पानी के बिना, सन के बिना, हवा के बिना आप नहीं जिंदा हो रह सकते थे, है ना? You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, the rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth.
हाँ, बहुत सारे ओशंस के लिए, ट्रीज के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, क्योंकि उनकी वजह से ही तो इतना सुंदर लगता है ये प्लैनेट। इतना ट्रीज, वो तो हमें हवा ही देते हैं ना, ऑक्सीजन देते हैं। फ्लावर्स को देख के कितना अच्छा लगता है। प्लांट्स हैं, उनकी वजह से ही आपको फूड मिल रहा है ना। ब्लू स्काईज, रेन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, स्टार्स के लिए। जो भूल चुके हो आप, ये वही चैप्टर है जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, कि बचपन में हम कितने खुश होते थे इतना बारिश होने पे, स्टार्स देखने पे, मून देखने पे, जिनको आप भूल चुके हो। ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ, क्यों ट्रैवल के सपने लिखे हैं कल आपने? क्योंकि ब्यूटीफुल प्लैनेट है अर्थ। आपका मन है देखने का, आपका मन है देखने का वो दुनिया जो भगवान जी ने इतनी प्यारी बनाई है ना। आप धरती माता का थैंक यू करो, आप देखो आपको जहाँ वेकेशन पे जाना है वो आपको ले जाएंगी वहाँ। तो आप करके तो देखो थैंक यू। धरती माता ही तो आपको घर देगी वो ड्रीम, है ना। तो एग्जाम्पल्स हैं ये, आप प्लीज इनको देखें और पॉइंट्स को नोट करें, और फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम रिपीट कर सकते हैं क्या अपनी ब्लेसिंग। तो प्लीज। You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? है ना। तो अब उसने ये वाला पैराग्राफ जो गया उसमें उन्होंने अपनी बॉडी के लिए थैंक यू बताया, अपने सेंसेस के लिए, कि मैं स्मेल कर पाती हूँ, मैं टेस्ट कर पाती हूँ, है ना, मैं देख पाती हूँ, मैं सुन पाती हूँ अच्छे अच्छे गाने, सेशंस, यूट्यूब को सुन पाती हूँ, मैं दूसरों से बात कर पाती हूँ, जिस उनकी बात मुझे सुनाई दे पाती है ना। मैं जब खाना खाती हूँ तो मुझे कितना मज़ा आता है टेस्टी खाना खा के। तो क्यों आता है? क्योंकि मेरे टेस्ट सेंसेस हैं, राइट। मेरी बॉडी है, मेरी लेग्स हैं, मेरे हैंड्स हैं। मेरे हैंड्स नहीं होते तो मैं कैसे अपने सारे काम खुद करती। हम पूरा दिन अपने हाथों से पाँव से सारा दिन काम कराते हैं। तो इतने सारी नियामतें हमको भगवान जी ने बॉडी में ही दे रखी हैं। हजारों शुक्राने तो हमारी बॉडी के ही हो जाएंगे अगर सिर्फ बॉडी बॉडी सोच लो। तो यस, सो देर आर सो इट इज अ गिफ्ट दैट हैज बीन गिवन टू यू बाय द यूनिवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। आपके पेरेंट्स हैं, ये जितने भी इन्होंने टॉपिक्स बताए इसमें आपके पेरेंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। पेरेंट्स इतनी बड़ी ब्लेसिंग है वो आपकी लाइफ में, जो आपको हर समय देते आए हैं। बचपन से लेके आज तक आपको बस वो दे ही रहे हैं। आज भी हैं तो वो दे ही रहे हैं, लव दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं। और आपको ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ उन्होंने आपके लिए किया ना। तो वो आपके सोर्स भी हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो अपने पेरेंट्स को, मदर एंड फादर को हमेशा इंक्लूड करना है अपने ग्रैटिट्यूड में। वो ही आपकी बैटरी हैं, वो ही आपका सोर्स हैं। जितना आप उनका ग्रैटिट्यूड करोगे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। क्योंकि वो 2% ऐसे हैं आपकी दुनिया में, उनसे ज़्यादा आपको कोई और ब्लेसिंग दे नहीं सकता। अगर कोई दिल से आपको ब्लेसिंग देगा तो वो आपके पेरेंट्स होंगे। तो प्लीज़ ऐड देम इन दी सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो अभी यहाँ पे आएंगे। बट दिस इज मतलब जितनी भी इन्होंने यहाँ पे टॉपिक्स दिए, जैसे मैग्निफिशेंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, आपकी बॉडी के पार्ट्स, आपका लिवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके बोन्स, नीज, जॉइंट्स, सब कुछ बुक कवर करेगी धीरे धीरे। जैसे हम कल कल के बाद जब हम डे 3 से आएंगे तो हमें हर एक टॉपिक पे भी हम ग्रैटिट्यूड करेंगे। लेकिन आज उन्होंने इस चैप्टर में आपको आइडियाज दे दिए हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स में आप क्या क्या कर सकते हो। Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing.
ना, तो उन्होंने सारे एरियाज यहाँ बता दिए हैं कि आप किन किन एरियाज में ग्रेटफुल हो सकते हो। ठीक है, जैसे कि हेल्थ एंड बॉडी हो गया, फिर आपका रिलेशनशिप हो गया, फिर आपका वर्क हो गया, सक्सेस हो गया, मनी हो गया, फिर इसमें वही मैंने बोला पेरेंट्स को ऐड कर लो, मम्मा पापा हो गए, रिलेशनशिप में ही आता है वो, लेकिन वो टॉप रिलेशनशिप है। ठीक है, फिर मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया कि आपके घर में टेबल है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, खाना है ना, इस तरीके से कार है आपके पास शूज़ हैं, क्लोथ्स है, तो ये मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज हो गई। फिर सर्विसेज के लिए आप थैंक यू कर सकते हो, आप कहीं जाते हो, ड्राइवर आपके लिए कार चला रहा है, उबर ड्राइवर है या बस ड्राइवर है, ये सब भी सर्विसेज का पार्ट है। तो बहुत सारे ये सारे जितने भी टॉपिक्स है ना, जब आप मतलब आज तो अभी 11 मतलब दिन स्टार्ट हो गया, तो आज की असाइनमेंट आप आज करोगे काउंट योर ब्लेसिंग्स की, और कल से आप सुबह उठ के करोगे। तो जब आप आज दिन में टाइम निकालोगे इसको करने के लिए, तो आप ये सारे टॉपिक सामने रख लेना, ताकि आपको ईजी हो जाए कि इन टॉपिक्स पे मुझे ग्रेटिट्यूड लिखना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel really happy really quickly, and others days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time. And you will see your blessings magically multiply. तो जितना ज्यादा आप लिखते जाओगे, जब आप लिखोगे तो आपका ग्रेटिट्यूड काम किया है या नहीं, आपकी फीलिंग से पता चल जाएगा आपको। तो आपने काउंट योर ब्लेसिंग्स की तो आप बहुत हैप्पी फील करना स्टार्ट कर दोगे, और अगर आपने हैप्पी फील करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब आपका ग्रेटिट्यूड काम कर गया। ठीक है, तो अभी अच्छी बात है, चैप्टर खत्म हो गया, तो हम अभी असाइनमेंट भी करेंगे 5-10 मिनट्स। लेट्स रीड फास्ट। Magic reminder: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Magic हाँ, तो कल की प्रैक्टिस अब वो बता रही है कि कुछ करना है स्पेसिफिक, तो आपको कल की प्रैक्टिस के लिए एक रॉक ढूंढ के रखना है, छोटा सा रॉक। किसी भी आपकी रोड साइड पे मिल सकता है, आपको रिवर बेड पे मिल सकता है, आपके घर में, मतलब बेसिकली वो स्टोन या वो होना चाहिए, रॉक होना चाहिए बेसिकली धरती माता का। देयर इज नो क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल्स नहीं चलेंगे, कोई कलरफुल ऐसे नहीं चलेंगे, सिंपल सा छोटा सा रॉक जो आपके हाथ में आ जाए, स्मूथ होना चाहिए, कोने नहीं होने चाहिए उसके, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में ना आए, छोटा सा। हाँ हाँ, शिल्पा जी आप दिखा दीजिए, मेरा ऊपर पड़ा है। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट पिन हर टू शो। इज इट विजिबल? शिल्पा जी दिखा रही हैं, कैन यू ऑल सी? छोटा सा मैजिक रॉक होता है, दिख नहीं रहा किसी को। एक मिनट, अभी जब हम बुक शेयरिंग बंद करेंगे ना तो फिर से दिखाते हैं। ठीक है, ओके, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, प्रैक्टिस This पढ़ is लेते our हैं। one. Count your blessings. Number one. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you're grateful for. Number two, write why you are grateful for each blessing. Number three, go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Number four, repeat the first three steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Number five, read tomorrow's magical practice today. सो आज आज आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है अपनी नोटबुक में। ठीक है, फिर उसको पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर ब्लेसिंग को रीड करके बोलना है। और आज पहला दिन है, और आज से अगले 27 डेज तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार शिल्पा जी आप अपना वो दिखा दें,
तो फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये रॉक दिख रहा है सबको? यस। ओके, सो छोटा सा रॉक जो आपके हाथ में आ जाए, ठीक है? ओके। सो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब लाइव नहीं है आज, देर इज सम ब्रेकडाउन, सो वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग जस्ट आफ्टर द सेशन एंड वी विल गिव यू द लिंक। ओके, थैंक यू। जस्ट सो मैं बोल रही थी कि लेट्स नाउ हैव योर नोटबुक्स एंड पेन एंड लेट्स राइट 5 ब्लेसिंग्स नाउ। ठीक है, कैसे लिखनी है तो हम लिखेंगे। वैसे इसमें जैसे बोलते हैं ना डायरेक्ट ग्रैटिट्यूड टू वर्ड्स, तो आप ये एक लेटर की फॉर्म में भी कह सकते हो, डियर भगवान जी, डियरेस्ट गॉड, डियरेस्ट सन, जिस जो भी आपका मन करे। स्टार्ट राइटिंग नाउ, ओपन, स्टार्ट राइटिंग। जैसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, कम ऑन एवरीवन जस्ट स्टार्ट राइटिंग। I'm truly grateful for my legs because I can walk and climb stairs. मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ अपनी लेग्स का, मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ अपनी लेग्स की, क्योंकि मैं चल सकती हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। I'm truly grateful for my hands because I can cook the food for my family and myself. मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने हाथों की, क्योंकि मैं उनसे बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ। आप कोई भी रीजन लिख सकते हैं कि मैं अपने हैंड्स की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं अपने अपने क्लोथ्स खुद पहन सकती हूँ, मैं अपने क्लोथ्स प्रेस कर सकती हूँ, मैं क्लीन कर सकती हूँ, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। हाथों के तो बहुत सारे रीजंस है ना थैंक यू बोलने के। नेक्स्ट लिखेंगे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस लैपटॉप और मोबाइल, जिसकी वजह से मैं ये सेशन अटेंड कर पा रही हूँ। क्योंकि तो हम बोलेंगे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप या मोबाइल या जो भी, बिकॉज मैं इस सेशन को अच्छे से अटेंड कर पा रही हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मॉम, मैं अपनी मम्मा की बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया बचपन से लेके आज तक। और स्पेसिफिक भी बोल सकते हो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी मम्मा की, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी गोदी में सुलाया, मुझे खाना खिलाया। क्योंकि वो मेरे लिए रोज स्कूल में टिफिन बना के देती थी। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ अपने पापा की, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में भेजा, मेरे स्कूल की फीस दी।
बहुत सारे रीजंस हैं मम्मा पापा के थैंक यू करने के। और मुझे डॉक्टर के पास लेके गए व्हेन आई वाज नॉट वेल। उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मैथ्स पढ़ाई, उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया या मुझे साइकिल दिलाई या मुझे स्कूटर दिलाया, मुझे बुक्स दिलाई, स्टेशनरी दिलाई, है ना, मुझे यूनिफॉर्म दिलाई। जब मेरे कपड़े छोटे हो जाते थे तो उन्होंने मुझे न्यू क्लोथ्स दिलाए। मैं पापा की बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पार्टी की ड्रेस लेके दी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। हजारों रीजन है, सोचने बैठोगे तो हजारों रीजन है। यस, 5 लिख लिए सबने? लिख लिए? तो अब हम इनको रीड करते हैं वापस से। तो कैसे करनी है प्रैक्टिस, इसलिए हम 5 करके करेंगे क्योंकि देन वी विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। सो नाउ आई विल रीड अगेन कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माय लेग्स। कोई आप, शिल्पा जी आप पढ़ो, आप पढ़ो। और आप, क्योंकि मैंने सेम कर दिया ना। की आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आई। नाउ इट्स हाँ, कमिंग। यस। यही वाले पढ़ने हैं या मैं अपने पढ़ लूं? जो आपने लिखे हैं वो पढ़ो और फिर बताएं कैसे करना है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई बेड कि मैं आराम से रात भर सो पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई स्लीपर्स कि मैं उठते से उनको पहन पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई जर्नल, फॉर माई पेन कि मैं सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड लिख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई इलेक्ट्रिक कैटल कि मैं उसमें गर्म पानी कर पाती हूँ और सुबह उठ के ल्यूकवार्म वाटर पीती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द टेबल एंड चेयर कि मैं उस पर बैठ के अपने शुक्राने लिखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई बैग कि मैं उसमें मैजिक बुक, अपनी नोट्स, अपनी जर्नल, अपना पेन रखती हूँ। थैंक यू कि मेरी सब चीज़ असेंबल रहती हैं। थैंक यू सो मच। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई क्लोथ्स कि जो चाहती हूँ, जिस रंग का कपड़ा पहनना चाहती हूँ वो पहनती हूँ और बहुत सुंदर दिखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द लैपटॉप कि मैं सेशंस ले पाती हूँ, अटेंड कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द वाईफाई कि 24/7 वो होता है और मैं जब चाहूँ ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ, सुनती हूँ, अच्छा यूट्यूब में पॉडकास्ट सुनती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई माइंड कि वो हमेशा मुझे शुक्राने करने में मदद करता है, मुझे नए नए आइडियाज देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पा जी। वाओ वाओ वाओ। एनी वन मोर पर्सन? नेहा जी का हैंड रेज्ड है, आप अपना शेयर करना चाहेंगे कि आपने क्या लिखा? या नहीं? yes or no? okay, anyone who wants to just repeat जो हमने अभी किया, जो अभी अभी शिल्पा जी ने किया, उन कोई एक जना जो अपनी नियामतों को रिपीट करना चाहेगा। प्रिया जी आप करना चाहेंगे? यहाँ नहीं, पे कोई डरने की बात नहीं, आप जितना करोगे ना आप रेक्टिफाई हाँ, होगे, उतनी हाँ, क्लैरिटी आप बढ़ेगी, इसमें सीखोगे। कोई। हाँ, हाँ, राइट। वी ऑल आर लर्नर्स। एनीवन? ओके, सो किसका हैंड रेज्ड है? पिंकी जी। Oh, yes, thank you so much. Thank you for the opportunity. So मैं अपनी 5 blessings ये कर रही हूँ, नियामतें शुक्राना. So first is I am truly grateful for my tummy because it digests everything so nicely. Thank you, thank you, thank you.
I'm truly grateful for my hands because I can cook yummy foods. Thank you, thank you, thank you. I'm truly grateful for my laptop because I can work so nicely. Thank you, thank you, thank you. I'm truly grateful for my mother because she always motivates me and always being with me. Thank you, thank you, thank you. I'm truly grateful for my son Om because he is so obedient and very nice person. Thank you, thank you, thank you. So I Thank did not, you. thank you so Yes. much. So I did not write it in a book this 3 times. Thank you. I did not write, but No, no. हमें ये Yeah. बोलना है, हाँ, right? right, right, right. Okay. बोलना So है. ऐसे ही feel करके बोलना है. एक hidden smile आ जाता है when we write, right? Yes. So everybody see कितना feeling आई ना और कितने प्यार से आपने बोला पिंकी जी. Thank you so much. Beautiful. Very nice. तो ऐसे ही करना है, बोलना है और दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना नहीं है जैसे उन्होंने बोला, वो बोलना है जब आप रीड करेंगे. यस, देयर आर फ्यू मोर हैंड्स रेज्ड. आराध्या. ओके. हेलो. यस, इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो दैट विल बी बेटर. ओके, no problem. समिधा थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इसके बाद आप क्वेश्चंस भी हैं. चलो ये लास्ट So है, उसके हाँ, बाद एक. फास्टर कर. so I am really grateful. I am so grateful कि आज मैं सुबह उठी, मुझे एक ये नई जीवन मिला मुझे सबसे पहले. एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं सांस ले पा रही हूँ. सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर चाय, जो मैंने आज चाय बनाया, जो मुझे दूध पाउडर मिला, चाय पत्ती मिली, गैस मिला. मैं पीजी में रहती हूँ, मुझे इतनी सारी फैसिलिटीज मुझे मिली. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो यू मच. सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर लाइक कि मैं आज इसमें ब्रीथ कर पा रही हूँ, क्योंकि इसके बिना मेरी लाइफ नहीं है, जो मैं रियलाइज नहीं कर पाती हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा पीसफुल देता है. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दिस. थैंक यू थैंक यू. थैंक यू. आई एम एक शेयरिंग या है और ये नेहा जी की शेयरिंग शायद. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. थैंक यू. समिधा एक क्वेश्चन है मैम, एक ही पर्सन के लिए अगर हमको ज्यादा ग्रैटिट्यूड लिखना है तो एक ही बार लिखें या अलग अलग लिखें? नहीं, एक ही पर्सन के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना ग्रेटफुल होने के. तो आप उसी पर्सन के लिए बहुत सारे रीजन लिख सकते हो, है ना. कि जैसे आपको अपने हस्बैंड का थैंक यू करना है तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड बिकॉज ही हेल्प्स मी इन किचन वर्क फॉर एग्जाम्पल. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड, वो मेरे बच्चे को पिक कराते हैं स्कूल से. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड कि वो ग्रॉसरी ले आते हैं. आई एम सो ग्रेट. तो ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं ना, आप रीजंस के साथ ग्रेटफुल हो सकते हो. तो यस, नेहा जी की क्विकली शेयरिंग लेंगे. यस थैंक यू सो मच मैम. यस प्लीज. यस मैम, मेरे को अभी 3 days ही हुए सेशन लेते हुए. हाँ जी. और शिल्पा मैम से मैंने लास्ट टाइम कंफर्म किया था कि मेरा ये डाउट है. आई थिंक मैंने मैसेज में भी लिखा था कि मेरे हस्बैंड का एक ब्रेकडाउन है. तो वो कभी भी मतलब ये चीज नहीं बोलते कि मैं ठीक हो जाऊंगा. वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा. एंड लास्ट मतलब येस्टरडे ही सेड टू मी कि मैं ठीक हो जाऊंगा. और मतलब गॉड और ब्लेस. मैम वो दिल से ये चीज चाहते हैं कि मैं. God bless, God bless. Lots of blessings to you, you and your family. God bless. God bless. थैंक All यू is मैम. थैंक ये गोल्डन थ्रेड पकड़ के रखना बस. yes, golden thread of gratitude. एक और था, स्टार्टिंग में ही आ रहा था. इन कोड इट वाज रिटन बेटर टू लॉस काउंट व्हाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स, बट इन पैराग्राफ इट सेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, लिस्ट 10 थिंग्स, प्लीज एक्सप्लेन मैम. ये 2-3 बार हाँ, क्वेश्चन है. वो ये बोल रहे हैं कि जैसे देखो, काउंट योर ब्लेसिंग का जो चैप्टर है ना, 10 ब्लेसिंग लिखने का, वो आपको एक तरीका सिखा रहा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आने का. ठीक है, आपको वो सीधा बोल देगा कि 100 लिखो, तो आप लिख लोगे क्या 100 पहले ही दिन,
है ना। तो वो ये बोल रहा है कि जब आप, जैसे अभी अभी भी हम कर रहे थे, तो जैसे आप बोलना शुरू होते हो सन के सामने खड़े होके, जब आप थैंक यू बोलना शुरू होते हो तो आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। हमने मैजिक फॉर्मूला भी पढ़ा कल, जिसमें उसने ये बोला डेलिबरेटली से थैंक यू, बोलते जाओ बोलते जाओ, एक दिन फीलिंग जरूर आएगी। तो वो ये नहीं कह रहा कि आपको 100 लिखने हैं, वो बोल रहा है 10 से स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। इतने लोग यहाँ पे पुराने हैं जो 10 नहीं बहुत लिखते हैं रोज, ठीक है। तो डेली 10 ब्लेसिंग्स एक तरीका है आपको इंट्रोड्यूस करने का टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ये दिस इज योर स्टार्टिंग, ये आपकी बिगनिंग है लाइफ की, कि आज से आप इनको, और लूज योर काउंट का मतलब ये है कि जब आप, जैसे आपने थैंक यू बोलना स्टार्ट किया, हमने आज थैंक यू डांस किया, सुबह किया था ना, वो सॉन्ग क्रिएट किया गया है, शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन ने वो सॉन्ग क्रिएट किया है ताकि आप 100 बार थैंक यू डांस करते करते बोल लो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थैंक यू ना, कल जैसे दीदी जी ने भी समझाया था, थैंक यू एक ऐसा पावरफुल वर्ड है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी पावर है। तो आप जितना ज्यादा उसको बोलोगे बोलोगे बोलोगे, उतना ज्यादा आपको आपकी लाइफ में समृद्धि आएगी ही आएगी। तो काउंट कहने का मतलब है भूल जाओ जब ये सोच रहे हो कि मैंने कितने कर लिए, बोलते हुए भी, लिखने में भी ठीक है, लिखने में अभी आपको 10 करनी है क्योंकि बुक ऐसा कह रही है। आई होप आई एम क्लियर व्हाट डज दैट मीन, राइट। सो यस। समिता, वन थिंग मोर पूछ रहे हैं, क्या ये उठते ही करना है या दिन में कभी भी कर सकते हैं? जस्ट क्लियर इट आउट। देखो, बुक ने तो बोला है उठते ही करना है, ठीक है, हम बुक को मानते हैं, बुक उठते ही करो। 10-15 मिनट सुबह अपने लिए प्लीज निकालो। आप सेशन में आए हो और ये बुक करने आए हो, ये 1 घंटा जो आप अपने लिए निकाल रहे हो, इसकी प्रैक्टिस आप सुबह उठते ही काउंट योर ब्लेसिंग्स की करेंगे, जैसा बुक ने बोला है। हम बुक को मानते हैं, हम बुक को पूजते हैं, इट्स अ लाइव बुक जो हमें वो सिखा रही है, तो जस्ट फॉलो whatever it is saying, ठीक है। बहुत ही मजबूरी हो गई, नहीं उठ पाए, लेट हो गया, कुछ हो गया, तो आप दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो। बट एक, आप जब रात को सोओगे ना, अभी हम कल की जब प्रैक्टिस करेंगे, तो आप खुद ही सुबह उठ के लिखोगे। आपको रात को भगवान जी को बोल के सोना है कि मुझे सुबह उठ के ब्लेसिंग लिखनी है भगवान जी। मैं ये नहीं बोल रही आपको 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, वो सब बात की बातें हैं ब्रह्म मुहूर्त की। जितने बजे भी आप उठते हो, 15 मिनट पहले उठो, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है ना, 15-20 मिनट तो निकालो अपने लिए, एटलीस्ट स्टार्ट इट, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। I think the time is also over. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. I hope this session was some use to you. Thank you so much for joining. Thank you. God bless you all and see you tomorrow. Thank you. Thank you.